مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے اس لڑکی کو جیل بھجوانا ہے۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اور اس کی ماں میرے بیٹے کو مار کر اس طرح کھلے عام تو نہیں گھوم سکتی۔ وہ ایک بار پھر حلق کے بل چلائیں۔ بس۔ التمش کے ایک دھاڑ پر پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ میں کب سے آپ کی یہ بلا وجہ کی چیخو پکار برداشت کر رہا ہوں۔ اگر ہم چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم میں سے کسی کو غصہ نہیں آ رہا۔ ہمیں آپ سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، مگر وفا اور اس کی ماں پر نہیں بلکہ ہادی پر۔ آج تک رائے خاندان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ہمارے بڑوں نے کتنی محنت سے یہ عزت کمائی تھی۔ رائے زادہ خاندان کے ایک بول سے سرکار بن اور بگڑ جاتی تھی۔ کسی کام کے لیے ہم ایک بار اپنے منہ سے لفظ نکال دیتے، بلا کسی غرض کے وہ کام کرنے کے لیے لوگ دل و جان سے جٹ جاتے تھے۔ مگر برسوں کی بنائی یہ عزت آپ کے بیٹے نے 1 منٹ کے اندر اندر مٹی میں ملا دی۔ آپ کا بیٹا مطلب وہ اس رائے زادہ خاندان کا بھی بیٹا تھا، وہ تم سب کا بھائی ہے۔ غلط۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں پھپھو، مگر ایک قاتل زانی کو ہم میں سے کوئی بھی اپنا بھائی تصور نہیں کرتا۔ جو لوگ ہمارا نام سن کر آنکھوں میں عزت لیے احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہی لوگ ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا ٹی وی چینل پر رائے زادہ خاندان کا نام اچھال رہی ہے، جو نام کل تک عزت سے پکارا جاتا تھا، آج اس نام کو درندوں کی لسٹ میں لا کھڑا کیا ہے، اور یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جس دن اس نے پہلی بار کسی لڑکی سے بدتمیزی کی، آپ کو اسی دن ہادی کو سزا دینی چاہیے تھی، اسے غلط عمل سے روکنا چاہیے تھا، مگر آپ نے نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کی بلکہ اس کے تمام کرتوتوں کو سارے خاندان سے چھپائے رکھا۔ جن 2 ٹکے کی ماں بیٹیوں کی آپ بات کر رہی ہیں نا، آج رائے خانزادہ خاندان ان دونوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ بولتے بولتے کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ پورے ہال میں سناٹے پھیل گئے تھے۔ کچھ توقف کے بعد مضبوط لہجے میں گویا ہوا، التمش رائے زادہ، آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد روشن ولا کا کوئی بھی فرد ہادی کا نام بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا۔ ایک کیریکٹر لیس اور قاتل رائے زادہ خاندان میں سے نہیں ہو سکتا۔ التمش کے فیصلے سے سبھی لوگ متفق تھے، مگر دانین کو تو پتنگے لگ گئے۔ جیسے ہی التمش وہاں سے گیا، سبھی لوگ اسی کے پیچھے پیچھے چلتے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پورا ہال خالی ہو گیا تھا اور دانین وہاں اکیلی چیختی رہ گئی، یہاں تک کہ نوکروں نے بھی اس کی چیخو پکار کو سننا ضروری نہ سمجھا۔ آج عدالت کے فیصلے کو ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ دانین کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ سب اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کی بات سننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی بس ایک ہی منطق تھی، اس کا بیٹا معصوم ہے اور وفا کو سزا ہونی چاہیے۔ اب تنگ آ کر سب نے اس کی باتوں پر کان دھرنا ہی بند کر دیا۔ فاطمہ نے اشاروں سے التمش کو کئی بار وفا کو واپس لانے کا بولا تھا، لیکن وہ چپ سادھے بیٹھا تھا۔ مگر آج اس کا صبر بھی جواب دے گیا۔ عدالت میں وہ یہ جان گیا تھا کہ وفا بے قصور ہے، مگر بعد میں جب ہادی کے کیس کو کھولا گیا، جن جن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جن جن کو جلا کر مار دیا گیا، ان میں سے ایک وفا کی بہن بھی تھی۔ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ بات بھی اس پر آشکار ہو گئی تھی۔ قصور سارا اس کے بھائی کا ہے، اس بات پر وہ نادم تھا۔ آج وہ پورے نقشق سے تیار ہوا تھا، بلیک 3 پیس سوٹ پہنا، امپورٹڈ پرفیوم لگایا، سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت بوکے بنوایا، بالوں کو اچھے طریقے سے سیٹ کیا۔ کئی بار اپنی تیاری کو آئینے میں دیکھا، لیکن پھر بھی ہر بار کمی سی لگ رہی تھی۔ فاطمہ، ارشد، مائرہ، مائزہ سب لوگ اکٹھے ہو کر آج مریم کے پاس جا رہے تھے تاکہ وفا کو روشن ولا واپس لا سکیں، لیکن ان سب سے پہلے التمش وفا کے پاس جا رہا تھا۔ اگر وفا کو اس سے کوئی شکوہ شکایت یا ناراضگی ہے تو وہ اسے خود دور کر سکے، تاکہ جب اس کی فیملی وفا کو لے جانے کی بات کرے تو وفا انکار نہ کرے۔ السلام علیکم آنٹی۔ وفا کے گھر آ کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ مریم اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ کتنی چاہ سے انہوں نے اس انسان کو اپنی بیٹی کا ہم سفر چنا تھا۔ کاش وہ اسے طلاق نہ دیتا۔ وفا اسے چاہنے لگی تھی، یہ بات مریم پر اسی دن آشکار ہو گئی تھی جس دن وہ ہادی رائے زادہ کا قتل کر کے آئی تھی۔ اس وقت اسے کسی کی جان لینے کا یا اپنی زندگی برباد ہونے کا دکھ نہیں تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں کسی چیز کا درد تھا تو وہ بس التمش کا، اسے خود سے جدا کر دینا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ پھیکا سا مسکرا کر مریم نے آداب میزبانی نبھائے۔ جی آنٹی۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ صوفے پر براجمان ہوا، ہاتھوں میں پکڑا سرخ گلابوں کا بوکے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا۔ کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ مریم کے کھڑے کھڑے سوال کرنے پر وہ حیران ہوا۔ نہیں آنٹی، کچھ نہیں، بس میں وفا سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آیا۔ 2 ہفتوں سے اس کی بیوی یہاں تھی۔ ان 2 ہفتوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔
वफा भी न जाने उसके बारे में क्या क्या गलत फहमी पाले बैठे थी जो एक बार भी फ़ोन नहीं किया। खैर, आज वो उन दोनों के दरमियान मौजूद हर गलत फहमी को मिटा देने का इरादा रखता था। इसीलिए बिना टाइम ज़ाया किए सीधा मुद्दे की बात पर आया। मगर मरियम का मुंह मारे हैरत के खुल गया। आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? वो इस वक्त किसी से नहीं मिल सकती। उनके दुख भरे रूखे फीके जवाब पर वो मज़ीद हैरान हुआ। वफा किसी से क्यों नहीं मिल सकती? सब ठीक तो है। उसे वफा की फ़िक्र लाहक होने लगी। हाँ, वो ठीक है, मगर वो फ़िलहाल इद्दत में है। इद्दत के नाम से अल्तमश को ज़बरदस्त शौक लगा। व्हाट? इद्दत? कैसी इद्दत? किस बात की इज्जत? मरियम ने एक नज़र उसके हैरान परेशान चेहरे की तरफ देखा, जिसके तासुरात से साफ जाहिर हो रहा था कि शायद वो सारे मामले से ही अनजान था। क्या ये भी हादी रोयज़ादा की तरह ड्रामे कर रहा है? मन ही मन में उसे अल्तमश भी हादी की फितरत में से लगा। आपने जो उसे तलाक दी थी, उसी बात की इद्दत काट रही है मेरी बेटी। कोर्ट में जाने की मजबूरी थी, वरना तो वो कब से इद्दत में थी। मरियम के लहजे में कड़वाहट दर आई। व्हाट? तलाक? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं वफा को क्यों तलाक दूंगा? और ये सब आपसे किसने कह दिया? अल्तमश के सर पर किसी ने मानो बम फोड़ दिया था। हैरत तो मरियम को भी हुई, मगर उसी वक्त वहाँ हाशिम आ गया। अस्सलामुअलैकुम आंटी। हाशिम को वफा के घर उस वक्त देखकर अल्तमश को हैरत का दोबारा झटका लगा। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि तुम आज वफा बहन को वापस रोशन विला ले जाने आए हो। हाँ, मैं वफा को लेने आया हूँ, मगर मरियम आंटी बोल रही हैं कि मैंने वफा को तलाक दे दी है। अल्तमश के औसान खता हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन सबको इस तरह की गलतफहमी क्यों कर हुई। इसमें आंटी की कोई गलती नहीं अल्तमश। वफा को भी यही लगता है कि तुमने उसे तलाक दे दी है। मगर क्यों? वो झुंझुला उठा। क्योंकि हादी रोयज़ादा ने उसे ऐसा ही बोला था। क्या बोला था? वो चौकन्ना हो गया और उसी के साथ साथ मरियम के भी कान खड़े हो गए। उसने एक फेक कॉल आने का ड्रामा किया। इसके बाद वफा से बोला कि तुमने उसे तलाक दे दी है और वफा को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स उनके पीछे लगा दी है। व्हाट? मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो फिर झुंझलाया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हादी ने इन सब से ये इसलिए बोला था कि वफा उससे शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। मतलब अल्तमश ने मेरी बेटी को तलाक नहीं दी? मरियम पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ी। अल्तमश ने सर हाथों पर गिरा लिया। अभी और कितना कुछ जानना बाकी था। मेरी बेटी तलाक याफ्ता नहीं है। मारे खुशी के वो रो पड़ी। आंटी, मैं वफा से मिल सकता हूँ? वो यकदम मरियम की तरफ मुड़ा। हाँ हाँ, मिल सकते हो। मारे खुशी के उनकी आवाज़ ही कपकपा गई। इजाज़त मिलते ही वो तेज़ी से आगे बढ़ा, मगर चंद कदमों पर ही यकदम रुक गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। फिर उसी तेज़ी से मुड़ा और टेबल पर रखे फूलों के बुके को उठाया और दोबारा तेज़ी से वफा के रूम की तरफ बढ़ा। आप यहाँ बैठ जाएं। आंसू बहाती मरियम को उसने सोफे पर बिठाकर पानी का ग्लास थमाया, जिसे चंद घूंट पीकर उसने दोबारा मेज़ पर रख दिया। तुम्हें मालूम था कि वफा को अल्तमश ने तलाक नहीं दी? वो बस इतना ही बोल पाई। फिर बताया क्यों नहीं? मरियम को हैरानी हुई। क्योंकि मैं चाहता था कि अल्तमश खुद वफा को लेने आए और आपको अपने मुंह से बताए कि वफा उसकी बीवी है और उसने वफा को तलाक नहीं दी। आ जाया करो कभी कभी। मेरा कोई बेटा नहीं है, मगर तुम्हारे आने से बेटे की कमी महसूस होना कम हो जाती है, और अब वफा भी ससुराल चली जाएगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। जी आंटी, बस पुलिस की जॉब ही ऐसी है कि घर पर अपने लिए कम ही टाइम मिलता है, लेकिन जब भी फ्री हुआ यहाँ आ जाया करूँगा। उसकी तसल्ली पर मरियम सरशार हो गई। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। वो दोनों आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे जब रोयज़ादा ख़ानदान के बाकी लोग ढेरों ढेर तहाइफ के साथ वहाँ आ धमके। उनकी तैयारी से ऐसा लग रहा था कि यहाँ सबके आने का मकसद यही है कि वो वफा को लेकर ही जाएंगे। मरियम का दिल सरशार हो गया। वो पहले ही चाहती थी कि वफा का मुस्तकबिल संवर जाए, और अब इन सब की तैयारी से लग रहा था शायद उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अल्तमश ने भी वफा को तलाक नहीं दी थी, तो कायदे के मुताबिक वफा को अब अपने ससुराल चले जाना चाहिए। वफा खुशो खुरम जिंदगी गुजारेगी, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती थी, और इसी में मरियम की अपनी खुशी भी शामिल थी। मरियम और हाशिम ने आगे बढ़कर उन सब का इस्तकबाल किया। उन सबको यूं अचानक देखकर मरियम के हाथ पांव फूल गए, मगर हाशिम ने आगे बढ़कर उन सब का अच्छे से इस्तकबाल किया। मुलाजमा को कुछ खाने के इंतजामात की हिदायत देने के लिए वो किचन की तरफ भागी। हाशिम भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। आंटी, आपको कुछ भी बनवाने की ज़रूरत नहीं, ये खाना किसी अच्छे से होटल से ऑर्डर करते हैं, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं बन पाएगा।
आप जाएं और वहाँ जाकर उन सब से बातें करें। मुझे यकीन है वो सब आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। हाँ, ये भी ठीक है, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। मरियम को उसका सुझाव अच्छा लगा। आओ तुम भी मेरे साथ आ जाओ, उनके पास बैठते हैं। मरियम ने उसे भी अपने साथ चलने का बोला। नहीं, आप चलें, मैं सबके लिए चाय बना कर लाऊंगा। सबको मेरे हाथ की चाय पसंद है और जब आप भी मेरे हाथ की चाय पियेंगी तो मेरी फ़ैन हो जाएंगी। वो शौक हुआ तो मरियम भी मुस्कुरा दी। आज देख लेते हैं फिर। कुछ देर में वो सबके लिए चाय बनाकर ले आया। हर बार की तरह इस बार भी उसकी चाय की बहुत तारीफ की गई, जिसे उसने मुस्कुराते हुए वसूल किया। 10 मिनट तक सबके साथ खुश दिली से बातें करते हुए आखिरकार वो उठ खड़ा हुआ। ओके, आप लोग एंजॉय करें, मुझे काम है, मुझे जाना होगा। मुस्कुराकर अपना मोबाइल उठाकर वो सबको सलाम दुआ करके वहीं से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माइजा ने एक नज़र उसके बिला तासुर चेहरे की तरफ देखा। जब से हादी के गुनाह साबित हुए थे, उस दिन के बाद उन दोनों का एक दूसरे से कई बार सामना हुआ, लेकिन उसने एक बार भी उसे आंख उठाकर नहीं देखा था, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। एक्सक्यूज़ मी, मैं बस 5 मिनट में आई। हाशिम को जाता देख वो सबसे एक्सक्यूज़ करती उसके पीछे भाग गई। हाशिम रुको, मेरी बात सुनो ना। क्या हो गया है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? वो उसके ऐन मुकाबिल आन खड़ी हुई। हाशिम ने रुख मोड़कर एक नज़र उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। वो उसके ऐन मुकाबिल आन खड़ी हुई। हाशिम ने रुख मोड़कर एक नज़र उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा? उसका अजनबियत भरा अंदाज माइजा को अजीब लगा। फिर तुम्हारे इस अजनबी रवैये की वजह क्या है आखिर? क्या तुम सच में नहीं जानती कि मेरे इस रवैये की वजह क्या है? वो इस्तेहज़ाइया हंसा। माइजा का दिल धक से रह गया। चलो मैं बताता हूँ। एक लंबी सांस खारिज करके वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। हादी रोएज़ादा ने, यानी कि तुम्हारे भाई ने, जिन लड़कियों के साथ ज्यादती करके उनको मौत के घाट उतारा, उनमें एक मेरी बहन भी थी। मेरी बहन हादी रोएज़ादा को नहीं जानती थी और ना ही वो उससे प्यार करती थी कभी। वो तो कभी हादी रोएज़ादा से मिलती भी ना, अगर वो बदकिस्मती से तुम्हारी दोस्त ना होती। मेरी बहन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो तुम्हारी दोस्त थी। एक दोस्त समझकर वो तुम्हें अपनी हर छोटी बड़ी बात बताती, जिसे तुम जाकर अपने भाई को बता देती, जो भाई नहीं बल्कि भाई के रूप में एक छुपा दरिंदा था। तुम्हारा वो दरिंदा भाई मेरी बहन को निगल गया। मेरी बहन का शिकार करने में तुमने उसकी मदद की। मेरी नज़र में तुम भी उतनी ही कसूरवार हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, हादी रोएज़ादा को उसके जुर्म की सज़ा मिल गई और तुम्हारा जुर्म साबित नहीं होता। ना ही तुम्हारे जुर्म की कोई सज़ा है, लेकिन मेरी नज़र में तुम आज भी मेरी बहन की मुजरिम हो, जिसने दोस्त बनकर उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। जिसके तुम जैसे दोस्त हो ना, उसका दोस्ती पर से एतबार ही उठ जाए। लड़कियां दोस्त एक दूसरे के राज लेने के लिए बनती हैं, एक दूसरे को अपने मन की बातें बताकर दिल का बोझ हल्का करने के लिए बनती हैं। जो बातें वो अपने घर वालों से, अपने भाई से शेयर नहीं कर पाती, वो अपनी दोस्त से करती हैं। लेकिन अगर दोस्त तुम जैसी हो तो दोस्ती ज़िंदगी की संगीन गलती बन जाती है। मुझे माफ़ कर दो। भाई ने बोला कि वो आपकी बहन से प्यार करते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसे निकलेंगे, तो मालूम होना चाहिए था ना। तुम्हें अगर कोई अपनी छोटी छोटी बातें बताता है तो तुम्हें वो बातें खुद तक महदूद रखनी चाहिए, ना कि जाकर अपने भाई के सामने खोल खोल कर बयान करनी चाहिए। आज मैं उस मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत सी बातें मालूम है। तुम मुझसे मोहब्बत भी करती हो, चाहता तो मैं भी कुछ गलत कर सकता था। आखिर तुम मेरी बहन की मुजरिम की बहन हो, और जिस दरिंदगी का वो शिकार हुई उसमें तुम्हारा भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा ज़मीर, मेरी परवरिश और मेरे असूल किसी की बहन बेटी के साथ ज्यादती की इजाज़त नहीं देते। नहीं हाशिम, मुझे तुम गलत समझ रहे हो। माना कि मैंने आपकी बहन के बारे में हादी को बताकर बहुत बुरा किया है। मैं ये भी मानती हूँ आपकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें शायद मेरा कसूर सिर्फ यही है कि वो मेरी दोस्त थी। ना वो मेरी दोस्त होती और ना ही वो हादी भैया की नज़र में आती। मगर मेरा खुदा गवाह है हाशिम, मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं सोचा। जब हादी भैया ने बोला कि वो आपकी बहन को पसंद करते हैं, तो एक आम बहन की तरह मुझे उसमें अपनी भाभी नज़र आने लगी। एक दोस्त भाभी के रूप में घर में आ जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। बस इसीलिए मैं उसकी हर पसंद नापसंद का भाई को बता देती। मगर मुझे क्या पता था कि वो ऐसे निकलेंगे। हमें तो कभी उनके बारे में ऐसी कोई बात मालूम ही नहीं पड़ी जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि वो अंदर से क्या सोचते हैं। हम सब के लिए तो वो हमारे वैसे ही हादी भैया थे जैसे अरशद भैया और अल्तमश भैया हैं। वो सफाई देना तो नहीं चाहती थी, मगर हाय रे ये जालिम मोहब्बत जो न जाने क्या क्या करवाती है।
हाशिम ने एक नज़र उसके धुआं धुआं चेहरे की तरफ देखा। नम आंखें दिल की सच्चाई बयान कर रही थी। ठीक है माइजा, मैं तुम्हारी एक एक बात को सच मान लेता हूँ, मगर मैं हमारे और इस रिश्ते को अभी कबूल नहीं कर सकता। मेरी बहन को खोने का जख्म कुछ दिन पहले ही भरना शुरू हुआ है। आज तक तुम मेरे लिए भी मेरी बहन की मुजरिम थी, मगर खैर, आज से मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे नज़रिए से सोचने की कोशिश भी करूँगा, मगर इसके लिए मुझे वक्त दरकार है। अगर तुम इंतज़ार कर सको तो ठीक है, वरना तुम्हें पूरा हक है अपने लिए एक अच्छा हमसफ़र चुनने का। कितना वक्त? उसके लहजे में आस और उम्मीद महसूस कर हाशिम का दिल कट कर रह गया। मगर वो वाकई में थोड़ी सी सही मगर सज़ा की हकदार थी। आखिर उसे भी तो एहसास होना चाहिए, जाने अनजाने में सही मगर गलती उससे ही हुई है। मालूम नहीं। उसे कोई खातिर खा जवाब ना देकर वो बस खामोशी इख्तियार किए वहाँ से चला गया। लब अपने आप मुस्कुरा उठे। जानता था वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। अगर वो उसे सारी ज़िंदगी इंतज़ार करने का बोलता तब भी वो शायद इनकार ना करती। बस कुछ दिन की सज़ा, ताकि सज़ा के साथ साथ उसकी मोहब्बत का इम्तहान भी हो पाए। उसके हिसाब से ये उसकी इद्दत के दिन थे, इसलिए उसने अपने वजूद को बस उसी कमरे तक महदूद कर रखा था। और वैसे भी अब जीने की कोई ख़ास वजह ना बची थी। नौउम्री में तलाक का धब्बा लगवा बैठी थी। लेकिन खैर, इस सारे हादसे में एक बात अच्छी हो गई थी। उसे यकीन आने लगा था कि उसकी माँ आज भी उसे बचपन जैसी मोहब्बत करती है। बस राइमा और सफदर के जाने के बाद उनका दिलो दिमाग हर चीज़ को शक भरी निगाह से देखने लग गया था, और वो अपनी माँ की ज़िंदगी में खुशियों की आखिरी उम्मीद थी। इसी वजह से वो ज़्यादा हसास हो गई। बेडग्राउंड से टेक लगाए वो आंखें बंद करके न जाने किन सोचों में मगन थी, जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी वो ना चौंकी। 1 घंटा पहले उसने मुलाजमा को जूस का ग्लास लाने का बोला था। 1 घंटा गुजर गया था, मगर न जाने वो कैसा जूस लेने गई या फिर भूल ही गई कि वापस ही ना आई। शायद वही आई होगी, मगर अपने आसपास मखसूस खुशबू महसूस करके उसने पट से आंखें खोल दी। अपने सामने अल्तमश को ब्लैक 3 पीस सूट के साथ हाथों में रेड रोजेस का बुके पकड़े उसकी तरफ खूबसूरत मुस्कुराहट लिए देख लिया था। हैरानगी से वो सीधी हो बैठी। आप? आपका शोहर, जिसे आप शायद संगदिल महबूबा की तरह भूल गई हैं। उसने मुंह के जाविये बिगाड़ कर नाराज़गी का इजहार किया। शोहर? वफा का दिमाग बस उसी लफ्ज़ में उलझ कर रह गया। आंखों में नमी झिलमिलाई। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था इस वक्त। ओह, याद आया। पुरसोच अंदाज में वो उसके ऐन बराबर आन बैठा। झिझक कर वो कुछ दूर सरकने लगी। तभी अल्तमश ने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर हो जाने से रोका। किस बात की इद्दत में हैं आप? मैं अभी सही सलामत हूँ और आपका शोहर हूँ। कोई भी आके आपको बोल देगा कि आपके शोहर ने आपको तलाक दे दी, और आप यकीन कर लेंगी और बिला वजह इद्दत काटने लग जाएंगी। मगर एक बार अपने शोहर से बात करना ज़रूरी नहीं समझेंगी? उसका तंजिया अंदाज वफा को हैरान कर गया। क्या मतलब? आपने? रुआं रुआं समात बन गया। दिल यकबारगी धड़कने लगा। जी मोहतरमा, मैंने आपको तलाक नहीं दी। वो आप अभी भी मिसेस रॉयज़ादा हैं। कुछ पल के लिए उसका मुंह हैरत के मारे खुल गया। आज ये खबर सुनकर सदमा लग गया था, मगर ये खुशी का सदमा था। उसका हैरत से खुला मुंह देखकर वो मुस्कुराया, मगर अगले ही पल उसका मुंह भी उसी तरह हैरत की ज्यादती से खुल गया जैसे वफा का खुला था। हाथ बढ़ाकर उसके गले में मौजूद उसी पेंडेंट को देखा जो उसने मुंह दिखाई के तौर पर वफा को दिया था, और अगले दिन उसने उसको बोला था कि उसने उसे नौकरानी को दे दिया है। ये आपके पास? उसने ताज्जुब से वफा के चेहरे की तरफ देखा, जो अब अपनी हैरानगी भूलकर उसके हैरान कुन तासुरात की तरफ देख रही थी। ये मेरे शोहर ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था, और मुंह दिखाई का तोहफा बहुत ख़ास होता है, और ये ख़ास तोहफा किसी को नहीं दिया जाता। वो जिस मान से गोया हुई, अल्तमश अश अश कर उठा। झूठी हसीना, आज ये दूसरा लक़ब उसके हिस्से में आया था। एक बार फिर उसकी आंखों में नमी दौड़ाई। आई एम सॉरी, मैंने आपसे हर वक्त झूठ बोला, मगर मैंने कभी भी आपसे बिला वजह झूठ नहीं बोला। मेरी मजबूरी थी। हमें लाख कोशिशों के बाद भी इंसाफ नहीं मिला था, तो मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। दोनों हाथों में मुंह छुपाकर वो ज़ारो कतार रो दी। अल्तमश ने अफसोस भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। वफा, मेरी बात सुनो। उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर वह दर्जा संजीदा हुआ। तुमने जो कुछ भी किया सही किया। अगर तुम मुझे बता देती कि मेरा भाई गलत है, तो यकीनन मैं तुम्हारी बात का कभी यकीन ही ना करता। हालात ने जिस तरह भी मोड़ खाया, अच्छा या बुरा, मगर हमें अपनों के सच्चे झूठे होने की पहचान ज़रूर करवा गया।
मगर इन सब ने एक चीज़ जिसके बारे में मैं आज सुनना चाहता हूँ, क्या वाकई तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करती थी या फिर तुम सच सच सुनना चाहते हैं? उसकी बात को दरमियान में ही काट कर वो तेज़ी से बोल उठी। अल्तमश ने इस बात में सर हिलाया। शादी से पहले मैं किसी से प्यार नहीं करती थी। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद था, हादी रोयज़ादा को सज़ा दिलवाना या देना। मगर शादी के बाद वो कुछ तवक्कुफ़ के लिए रुकी। शादी के बाद मुझे मोहब्बत हो गई। आपकी अच्छाई ने मुझे अट्रैक्ट किया। मगर जब आपने बोला कि आपने मुझसे शादी सिर्फ मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए की, बस उसी लम्हे मुझे शदीद मोहब्बत हो गई। इजहार मोहब्बत करके भी वो रो पड़ी। थैंक गॉड आपने मुझे तलाक नहीं दी। आप नहीं जानते मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। आज अल्तमश का दिल गहराइयों तक सरशार हो गया था। एक बोझल सांस हवा के सपुर्द करके अब वो खुद को हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा था। हाथ बढ़ाकर आंसू साफ किए। अल्तमश रोयज़ादा की बीवी को रोने का बिल्कुल हक नहीं। उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में भरकर सभी पेशानी पर दहकते लब रख दिए। वैसे इतना गंदा इजहार मोहब्बत कोई ना करे। उसने दोबारा मुंह के जाविये बिगाड़े। वफा हैरान हुई। ऐसे मत देखो बोरिंग बीवी, नीचे रोयज़ादा फैमिली पूरे एहतमाम से आपको लेने आई हुई है। नीचे रोयज़ादा फैमिली आई थी और उसे कुछ मालूम ही नहीं। दूसरी बात यह कि अपनी बीवी के सामने शर्म करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। मुझे नीचे जाना है, क्या सोचेंगे सब लोग, कितनी बेमुरव्वत हूँ मैं। वो शर्मिंदा हुई। कोई कुछ नहीं कहेगा। सबको मालूम है कि मैं अपनी बीवी को मनाने आया हूँ और अब मुझे अपनी बीवी मनाने दो। ये कहकर उसने वफा को खुद से करीब किया तो वो खिलखिलाकर हंस दी। अल्तमश ने उसकी मासूमियत भरी शफाफ हंसी को देखा और खुद भी मुस्कुरा दिया।